Hello everyone. Now we are going to start chapter number 1, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh of your new NCERT English book हॉर्नबिल। आप आज हम आपकी नई NCERT बुक हॉर्नबिल की चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ेंगे, रिटन बाय खुशवंत सिंह। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर। यहाँ पर एक चित्र है दादी माँ का। दिस इज़ अ स्टोरी बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। यहाँ पर जो कहानी है वो खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच की कहानी है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्रेट राइटर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह was born in year 1915 in Hadai, Pakistan. He died on 20 March 2014. He is most famous for his historical novel Train to Pakistan, published in 1956. In 1974, he was honored the Padma Bhushan by India's president. This is short about writer Khushwant Singh. And then we want to discuss with you difficult word meanings of this lesson. First word is portrait. Portrait. Portrait means a likeness of a person by painting, means प्रतिकृति. Mental piece, mentle piece. Mental piece means fireplace in drawing room, बैठक में आग का स्थान. Absurd, absurd. Absurd means foolish, मूर्खतापूर्ण. Hobble, hobble. Hobble means to walk lamely, लंगड़ाकर चलना. पकड़, pucked. पकड़ means full of wrinkles, झुर्री भरा. Expanse, expanse. Expanse means spread out, means फैलाव. Monotonous, monotonous. Monotonous means unchanging. एक सा. Bother, vother. Bother means worry या चिंता. Distressed, distresse. Distressed means cause sorrow to. दुखी. Harlot, harlot. A prostitute, वैश्या. Seclusion, seclusion. Seclusion means keeping away from society, जिसे एकांत कहते हैं. Resignation, resignation. Resignation means patient acceptance, स्वीकार करना. Veritable, veritable. Being truly, वास्तविक. Bedlam, bedlam. Bedlam is a place of noisy uproar, हल्ले गुल्ले का स्थान. Sentimental, sentimental. Sentimental means emotional, भावुक. Beads, bead. Bead means a small wall pierced for threading. माला का, मन का. कहना चाहिए जो धागे में गुथे हुए मोती होते हैं जिससे ईश्वर का ध्यान किया जाता है, माला की जाती है, उसे बीट कहा जाता है. रोजरी, ROSARY. रोजरी मीन्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यानी माला. फ्रिवोलस, FRIVOLOUS. फ्रिवोलस नॉट इम्पोर्टेंट, दिखावे का. रिव्यूक, REBUKE. रिव्यूक मतलब झिड़कना. सैगिंग, SAGGING. सैगिंग सिंक और बेंट डाउनवर्ड यानी लचक जाना. डायलपिटेटेड, DILAPIDATED. डायलपिटेटेड means decay with the passage of time, means जीर्ण शीर्ण. Pursued, PERSUAD. Pursued means convince, आग्रह करना. Pallor, PALLOR. Pallor means extreme or abnormal paleness, means पीलापन. Fetch, FETCH. Fetch means to go and bring, जाकर लाना. Scripture, SCRIPTURE. Scripture means a religious book. So this is the difficult word meanings of this lesson. Now let us go with me lesson. First para of this lesson, the portrait of a lady. Before read, notice these expressions in the text.
इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको हमको नोटिस करना है और उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनके मीनिंग को इन्फर करना है, स्पष्ट करना है, दर्शाना है, भाव के अर्थ को लिखना है। कौन कौन से एक्सप्रेशंस यहाँ दिए हुए हैं इस पर देखेंगे। फर्स्ट है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। सेकेंड एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, a turning point, accepted her seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirpings, next frivolous rebukes, next the sagging skins of the dilapidated drum। ये सारे एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू लेसन हम समझेंगे कि ये भाव किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ या किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं। जब हम लेसन पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। सो फर्स्ट पैरा ऑफ दिस लेसन, माय ग्रैंडमदर। माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ जैसे कि सबकी दादी माँ होती है, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स या दैट आई हैड नोन हर, मैं उन्हें देख रहा था, वे उतनी बूढ़ी और हाँ गालों पे उतनी झुर्रियाँ थीं 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देख रहा था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग कहते थे कि एक समय में बहुत नौजवान, प्रीटी मीन्स खूबसूरत, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर इस पे विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट प्रतिकृति थी वह ड्राइंग रूम के मेंटल पीस यानी आग के स्थान के ऊपर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले कपड़े उन्होंने पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो थी वह उनके आधे से ज़्यादा दाढ़ी छाती को ढक लेती थी और वह कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ, वो बिल्कुल उस आदमी की तरह नहीं दिखाई देते थे जिसकी कोई पत्नी रही हो और चिल्ड्रन या बच्चे। ही लुक्ड एज इफ ही could only have lots and lots of grandchildren, वे केवल वैसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे कि मेरी दादी माँ के लिए, बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि वह खूबसूरत और नौजवान और खूबसूरत रही हूँ। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, फर्स्ट देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग आ गया यहाँ पर, मीन्स यह जो थॉट या विचार था बिल्कुल उल जलूल लगता था। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा गया है। डू यू अंडरस्टैंड? शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, वे हमेशा उन खेलों के विषय में बताया करती थी जो उन्होंने अपने बचपन में खेले थे। दैट शीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ब्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, and we treated it like the favors of the prophets she used to tell us, means ये सब चीज़ें जो हैं बेतुकी और उनके शान के खिलाफ महसूस होता था, और उनकी जो कहानियाँ जो वे हमें सुनाती थी वे दंत कथाओं जैसी जो थी काल्पनिक थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेंट, वे कैसी थी? हमेशा वैसी ही रही, ठिकनी, मोटी और थोड़ी सी झुकी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा था जो हर जगह था। टू नो वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन, नहीं हमें पक्का विश्वास था कि वे वैसा हमेशा से वैसा ही हैं जैसे हमने उन्हें जाना था। नोन हर ओल्ड मीन्स कैसे जाना था? बूढ़ी। सो
टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर मीन्स इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स और वह लगभग 20 सालों से ऐसी ही हो चुकी थी। कई सालों से इसी उम्र में वे कैसी थी, स्टेट मतलब स्थिर थी लगभग 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी और वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी मीन्स बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल किंतु वह हमेशा सुंदर थी। ऑलवेज ब्यूटिफुल मतलब किंतु वह हमेशा सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary means वह सफ़ेद झक कपड़े पहने एक हाथ अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती थी और दूसरे हाथ में जो है वह माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लुक्स वेयर scattered untidily over her pale, pucked face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes means उनकी चांदी जैसी लटें उनके पीत वर्ण झुर्रीदार चेहरे पर छितरी रहती थी और उनके होठों से वह सुनाई न देने वाली भजन बुदबुदाती रहती थी। यस क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक? यस शी वॉज ब्यूटिफुल हाँ वे बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स और वह एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी सेरेनिटी मीन्स एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थी। इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब यह जो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी यह जो लाइन है एक शुद्ध श्वेत शांति का जो फैलाव थी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? ग्रैंड मदर की खूबसूरती के विषय में। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मीन्स जो शांति और संतुष्टि के हवा के झोंके के समान था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वे आर गुड फ्रेंड्स मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city. मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर शहर में चले गए थे। And we were constantly together. और हम निरंतर एक साथ थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह जगाती मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मीन्स जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वह एक स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी इस होप या उम्मीद से कि मैं उसे सुनूंगा और उसे याद कर लूंगा। मैं उन्हें सुनता था क्योंकि उनका स्वर जो था मीन्स हियर आई लिसन्ड मीन्स मतलब मैं उसे सुनता था। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk means मैंने जो है मैं उन्हें सुनता था क्योंकि उनका स्वर मधुर था पर कभी मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं की। फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लेती और उस पे जिसे वे पहले से ही धो पोंछ कर रख कर और पीले चाक से प्लास्टर से तैयार रखती थी। A tiny earthen ink pot and a red pen और छोटी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन को वो जो है
इनको बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। tie them and tie them all in a bundle and hand it to me, और मुझे दे देती थी। after a breakfast of a thick slate stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। एक मोटी स्टेल मीन्स होता है मोटी बासी रोटी, चपाती मीन्स रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर फैली रहती थी। स्प्रेड होना यानी स्प्रेड मीन्स फैला होना। वे मुझे नाश्ते के लिए मक्खन और शक्कर फैली रहती थी का नाश्ता करने के बाद हम जो है कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह अपने साथ गांवों के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां रखती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मेरी दादी जो है मेरे साथ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो है मंदिर से अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था। द priest taught us the alphabet and the morning prayer, और जो पुजारी थे हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। जब बच्चे पंक्तियों में दोनों ओर बरामदे में बैठकर सामूहिक रूप से वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे, दादी माँ मंदिर में अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें, स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थीं। When we had both finished, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों साथ में वापस आते थे पैदल चलकर जो है। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them। मीन्स इस समय गांव के कुत्ते हमारे पीछे पीछे उन रोटियों के लिए गुर्राते लड़ते आते जो हम उनके लिए फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें वहाँ भेजा। That was a turning point, ये एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे निकला, बोल्ड ब्लैक कैपिटल बड़े अक्षरों में जो लिखा है, a turning point। यह क्या था, हमारी मित्रता में एक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। जबकि हमने एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus। मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अब सड़कों पर कुत्ते तो नहीं थे, उन्होंने हमारे शहर के अहाते, कोर्टयार्ड मतलब आंगन या अहाते में चिड़ियों को रोटी खिलाने का काम शुरू कर दिया था। As the years rolled by, we saw less of each other। मीन्स जैसे जैसे साल 10 साल बीतते गए, for some time she continued to wake me up and get me ready for school। मीन्स
जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते पाए। और कुछ समय तक वह मुझे सुबह जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं स्कूल से घर आता वापस आता तो मैं इससे पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स। और मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताए और मैंने उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताए और पाश्चात्य के एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न और पाश्चात्य की कुछ छोटी चीज़ें और बताई। साइंस एंड लर्निंग और विज्ञान और शिक्षा के बारे में बताया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स मीन्स आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड पृथ्वी गोल है आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये सब चीज़ें जो थी उन्हें दुखी कर दिया। इन चीज़ों ने उन्हें क्या कर दिया, दुखी किया। शी डिड नॉट अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। और वे अब मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। और इस बात से वो बहुत दुखी थी जो थी कि अब मुझे मेरे पाठों के लिए वो तो हेल्प नहीं कर पाती थी और मुझे अंग्रेजी स्कूलों में जो बातें बताई जाती थी उनमें उनको विश्वास नहीं था और वे इस बात को लेकर परेशान थी कि विद्यालय में ईश्वर और शास्त्रों के बारे में नहीं बताया जाता। One day I announced that we were being given music lessons। मैंने एक दिन बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा। She was very disturbed। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। To her music had led associations। और वह बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत लंपटों की चीज़ थी, मतलब अच्छे लोग नहीं सीखते। वो ऐसा सोचती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक। कहने का मतलब है कि यह वैश्याओं और भिखारियों के लिए था, न कि सभ्य व्यक्तियों के लिए। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। यद्यपि वे कुछ बोलती नहीं थी पर उनकी चुप्पी का मतलब जो था वह था डिसअप्रूवल मीन्स असहमति। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और इसके बाद वे मुझसे कभी कभार ही बोलती थी। When I went up to university, जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। I was given a room of my own। The common link of friendship was snapped means विश्वविद्यालय में जब प्रवेश लिया तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड मतलब मित्रता की सामान्य कड़ी भी टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्रेशन विथ रेजिग्नेशन। यहाँ पर इस रेफरेंस को भी आपको समझेंगे कि मेरी दादी ने अपने एकांत को, सेक्रेशन मतलब एकांत को ही अपनी क्या मान लिया था, विरक्ति स्वीकार कर लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट को आपने समझा, किस रेफरेंस में कहा गया। शी रेयरली लेफ्ट हर spinning wheel to talk to anyone। अब वह कभी कभी ही अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए रोकती। स्पिन करना मीन्स रोकना। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers। और क्या करती थी, वे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने चरखे के पास बैठती थी और प्रार्थना किया करती थी। क्या करती थी, वे प्रार्थना किया करती थी।
and only in the afternoons he relaxed for a while to feed the sparrows. और केवल जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े के लिए बैठती, मतलब वो केवल दोपहर के पश्चात थोड़ी देर के लिए चिड़ियों को भोजन देने के लिए वो रोड दोपहर में अपना चरखा रोकती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, मतलब दोपहर पश्चात थोड़ी देर के लिए जो है वो चिड़ियों को भोजन देने के लिए विश्राम करती थी। नेक्स्ट है only in afternoon. Okay, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little words collected round her, creating a veritable वेडिलम ऑफ चिरपिंग्स। मतलब ये है कि जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बैठती, तो सैकड़ों छोटी चिड़िया जो है उनके चारों ओर एकत्र हो जाती और चहचहाते हुए कोलाहलपूर्ण स्थान बनाती थी। इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप समझ गए होंगे। सम केम एंड पॉज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ जो थी वो उनके कुछ आती और उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। पॉज करना यानी झपक के बैठ जाना। अदर ऑन हर सोल्जर्स, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर। शी स्माइल्ड, और वे हंसती थी। बट नेवर शूटेड देम, पर उन्हें भगाती नहीं थी। अवे मतलब दूर। It used to be the happiest half hour of the day for her, और यह समय उनके दिन का जो था सबसे खुशनुमा समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पक्का विश्वास था कि दादी जी अशांत हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, किंतु मेरी दादी कह सकती थी, वह भावुक भी नहीं हुई। She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, किंतु उन्होंने ना तो कोई बात की और ना ही कोई भाव दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग जो था उनकी उंगलियां जो थी वो प्रार्थना, उनकी हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां जो थी वो माला फिरा रही थी। रोजरी मीन्स हमने अभी देखा था, रोजरी मीन्स माला। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब वो चुपचाप उन्होंने मेरी जो फोरहेड यानी सामने के माथे को चूमा, और जब मैं वहाँ से चला तो मुझे ऐसा लगा कि यह जो चुंबन है उनके और मेरे बीच शायद अंतिम शारीरिक संपर्क रहा होगा। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, पर किंतु ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड was met by her at the station
तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और अब एक भी दिन वो मुझे ज़्यादा दिन बूढ़ी नहीं लगी। शी स्टिल had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Means अभी भी उनके पास शब्दों का समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उन्हें प्रार्थना करते सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Means मेरे आने से पहले के दिन भी उनके खुशी भरे क्षण चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खाना दिया और मधुर झिड़कियाँ भी दी। इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लिया। शी ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया, गाने लगी। फॉर सेवरल हॉर्स शी थॉम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डायल पिटेटेड ड्रम, और उन्होंने कई घंटों तक उन्होंने जीर्ण शीर्ण और बीच में धसे ढोल पर योद्धाओं के गाने गाए। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब उन्होंने कई घंटों तक जीर्ण शीर्ण और बीच में धसे ढोल पर वॉरियर्स यानी योद्धाओं के गाने गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। मीन्स हमें उन्हें आग्रह करना पड़ा कि इससे तनाव होगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यह पहली बार था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह जो है वे बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। मीन्स एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि वह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी जो थी वो उनका मानना कुछ और था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और वे कह रही थी कि मेरा अंत समय जो है वह अब आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने कहा कि चूंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटे पूर्व उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. अतः वह हमसे बात करने में अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहती थी। अतः वह हमसे बात करने में जो है वो अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट, जो है हमने उनका विरोध किया किंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वे अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती रहीं, माला फिराती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम शक करें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। आ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और एक फीकापन, शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वे शांत हो गई, मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड, और हमने उन्हें बिस्तर से उतारा। एंड एज इज
customary और जैसा कि रिवाज है, laid her on the ground and covered her with a red shroud, और हमने उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ देर तक शोक करने के बाद हमने उनके अंतिम क्रिया के संस्कार के आयोजन हेतु उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. Means शाम को हम एक अर्थी लेकर उन्हें दाह संस्कार करने के लिए कमरे में गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे में एक सुनहरी ज्वाला के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। We stopped halfway in the courtyard. हम अहाते के मध्य में रुके। कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है? बरामदा या अहाता कह सकते हैं जिसे। All over the veranda and in a room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, और पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहाँ वे मृत अवस्था में लाल कपन से ढकी थीं। क्या हुआ? Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों चिड़िया फर्श पर बैठी थीं। There was no chirping. आज कोई चहचहाट नहीं थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमें पक्षियों के लिए दुख हुआ। मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई। She broke it into little crumbs. और उन्होंने उसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ा जैसे दादी तोड़ती थी। The way was my grandmother used to, मतलब जैसे दादी करती थी। And threw it to them, और उन्हें दिया, उनके सामने फेंका। The sparrow took no notice of the bread. उन लोगों ने जो चिड़िया जो थी उन्होंने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम दादी के माँ के मृत शरीर को ले गए। They flew away quietly. तो चिड़िया चुपचाप उड़ गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगले सुबह सफाई कर्मचारी ने उन टुकड़ों को समेटा व कूड़ेदानी में डाल दिया। That's all of this lesson. Thank you for watching. Have a nice day.